नौटंकी साला। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आइडिया कैसे आया फिल्म का जो नाम है नौटंकी साला, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव मेड लव मास्टर के बाद। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। नौटंकी साला इज अ वेरी फेमस डायलॉग फ्रॉम योर फादर्स फिल्म शोले। जी। तो टेल अस समथिंग अबाउट द न्यू यू नो the new name of the film and what is it all about? Well, एक तरफ से नौटंकी साला was a very good title because the film is set in the world of theatre, so and स्टेज पे नाटक चल रहा है बट नौटंकी रियल लाइफ में हो रही है, तो इन दैट सेंस इट इज अ परफेक्ट टाइटल। एंड दोनों में से आप लोगों को जज फाइनली करना पड़ेगा हु इज़ द बिगर नौटंकी। इट स्टार्ट्स ऑफ यू थिंक कुणाल नौटंकी है, लेकिन आयुष्मान भी कमाल का नौटंकी निकलता है इन द कोर्स ऑफ द फिल्म। तो दैट वाज इट। ऑफ कोर्स इट्स अ लेजेंडरी डायलॉग सेड बाय मिस्टर बच्चन in Sholay. So I think because Ramesh ji is the senior producer on the film, there couldn't be a better title for the film. And yeah, finally हम एक स्पिरिट कैप्चर करना चाह रहे हैं। एंड इन अ फनी वे एक्चुअली मुझे बाद में एडिटिंग स्टेज पे लगा कि एक्चुअली नौटंकी इज़ अनदर नेम फॉर अ ब्लफ मास्टर। एक कॉन मैन एक एक्टर होता है, एक एक्टर भी एक कॉन मैन होता है, ऑडियंस को कॉन कर रहा है कि जो इमोशन वो पेश कर रहा है वो जेन्युइन है। सो इन अ सेंस आई थॉट दैट वाज अनदर नाइस थिंग कि फाइनली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। People were a bit surprised जब आपने आयुष्मान को लिया और कुणाल को लिया, because you worked with अभिषेक। आपने अपनी पहली फिल्म उसके साथ बनाई, अभिषेक बच्चन के साथ बनाई थी। So tell us something about that. Why not Abhishek in this film? He's doing a small cameo in the film. He's doing a small cameo, yeah. But I think of course, he has been very tied up. At the time when we were shooting this, I think he was working on Bol Bachchan, then got onto a massive film like Dhoom and Dostana and a couple of others. So I knew anyway that he was going to be tied up for a couple of years, and I could not be unemployed for so long. I'm lazy, but not that lazy. No, and the other thing was, it just genuinely felt like this was a nice jodi to put together in this. Happily, Abhishek loved the idea as well and said, I would love to. You have to do it on one condition कि आप मेरे लिए भी एक रोल लिख लो इसमें। And so immediately on the spot I said that's done. We were able to shoot a lovely little cameo with him where he's playing himself. So दोनों I think but it was a lot of fun. I obviously would have loved to work more with Abhishek, but in this film these two guys are perfect for the characters, and it's wonderful to get the support of a senior actor like Abhishek so early in their journey that he's coming on board to that film. So but it was these were the perfect actors for the parts that we had written. कोई नौटंकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों से आपको अट्रैक्ट हुआ है? खास करके आई थिंक आयुष्मान उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें एक नेचुरल क्वालिटी है, जो टोन है। ही स्पीक्स हिंदी वेरी कंफर्टेबली, एंड एक आपको इस फिल्म में भी आई थिंक विकी डोनर में मुझे वो इमीडिएटली was one of the things I really enjoyed. Overall, he's a very natural performer, and particularly उसकी dialogue delivery में मुझे बहुत मज़ा आया। said for this kind of a character it was perfect. कुणाल का जो कॉमिक टाइमिंग है कमाल का है। he's got this deadpan timing जो ऑडियंस देखते वक्त they will experience it. He is not laughing, he is not trying to be funny, and उसी में हंसी आती है। तो I think they're both very fine comic actors, and together they're even better as a pair. Who did you find who's the biggest nautanki in between, Kunal and Aisha? In this movie? In this movie, the biggest nautanki probably no. I'll have to go down to tie break. अभी promotion के time पे देखते हैं और नौटंकी कौन करता है। नहीं, पर आपके सेट्स पे सबसे बड़ा नौटंकी बॉस कौन है? Actually हमने इस फिल्म पे इतनी मेहनत की एंड 33 days में शूट कंप्लीट की, तो नौटंकी करने का मौका ही नहीं मिला। इट वॉज मॉर्निंग टू नाइट, वी वर जस्ट वर्किंग। 3-4 सीन हर रोज़ करते थे, और सो देयर वाज नो टाइम टू थिंक। तो आई थिंक ऑल आवर एनर्जी वाज पुट ऑन कैमरा। बाकी वी जस्ट लिटरली आयुष्मान बी ड्रिंकिंग समथिंग, having a coffee or a bite to eat to get his energy back up. उसको खाने का बहुत शौक है, so he was just getting his energy together. Especially him, he was on almost every scene of the film. So there was very little scope, and मैं मानता हूँ कि comedy is very serious business. तो it's not important अगर set पे आपको हंसी आ रही है, लेकिन finally editing room में रोना नहीं आना चाहिए. That's the important thing. सर जिस तरह यहाँ शोले की बात हो रही है, तो शोले में जय वीरू की दोस्ती देखने मिली थी, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है कि कुछ अलग है? लाइक दोस्ती है, दोस्ती से हटके क्या है?
आई थिंक इसमें फिल्म शुरू होती है एक चाइनीज़ कहावत के साथ, अगर आप किसी की जान बचाते हो उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस टू आयुष्मान, ये कि अजीब सा कैरेक्टर उसकी लाइफ में आ जाता है एंड उसको बचाने के चक्कर, उसके सुधारने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी में क्या नाटक शुरू हो जाता है। दैट इज़ द बेस ऑफ द फिल्म एंड धीरे धीरे एक जो इन दोनों के बीच में एक जो यारी और एक अटैचमेंट हो जाती है, दैट इज़ द काइंड ऑफ एसेंस ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स शोले इज़ एन अनबिलीवेबल एग्जाम्पल, बट हमने रिसेंटली ब्लफ मास्टर में भी रितेश और अभिषेक की जोड़ी हैड अ क्वालिटी विच यू हैड दीज टू स्ट्रेंज कैरेक्टर्स। टैक्सी 9-11 में भी जॉन अब्राहम एंड नाना पाटेकर एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स को हमने साथ में लेके आए, एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप। सो सिमिलरली आई थिंक वी आर अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ जोड़ीज़ जिसमें एक ह्यूमर भी आ जाए, एक इमोशन भी आ जाए और एक ड्रामा भी हो। इसमें इट्स ऑब्वियसली मोर ऑफ अ कॉमेडी, सो वी प्लेइंग ऑन दैट, बट इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विद टू गुड एक्टर्स like we've done in the past as well. Rohan, talking about your work with John, you're working with Ayushmann. John की पहली produced film को national award मिला है, क्या कहना चाहेंगे उनको as a producer, मतलब पहली produced film है और आयुष्मान की पहली film और उनकी उस film को national award मिला है. What do you have to say about? नहीं, बहुत बड़ी बात है to all the cast and crew, starting from Shujit Sarkar to everyone involved in that film, to all the rest. I think बाकी भी cast बिल्कुल काबिल तारीफ है, whether it's अनु कपूर, डॉली जी को भी नेशनल अवार्ड मिला है। सो आई थिंक देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट शुड बी हीप्ड ऑन ऑल ऑफ देम एंड अमेजिंग। फर्स्ट फिल्म में ऐसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बीच में काफी हाइप हुआ था कि आप ब्लफ मास्टर 2 लेके आ रहे हो, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, आप ऐसे नौटंकी को ऐसे सवाल करोगे तो उसके जवाब का कोई भरोसा ही नहीं है ना। इफ मैं हाँ बोलूँ आप मेरी बात मानोगे, मैं ना बोलूँ आप मेरी बात मानोगे? The beauty of Bluff Masters, I can keep telling you things you'll never know whether to believe me. No, but like काफी प्रमोशंस में भी देखा गया था कि अभिषेक और रितेश दोनों ब्लफ मास्टर 2 की बात कर रहे हैं। वो दोनों ओरिजिनल ब्लफ मास्टर है, वो अपने वो जी के अवार्ड्स को प्रमोट कर रहे थे। आप मीडिया भी बहक गए इसमें और सोचने लगे। नहीं, देयर इज नो सच प्लान एट द मोमेंट। इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट रिटन बाय श्रीधर राघवन। मैंने श्रीधर को वही चैलेंज दिया है, भाई इससे बेटर करना पड़ेगा, जो मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट इफ़ ही कैन राइट समथिंग बेटर आई वुड लव टू। आई हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग ऑन दैट फिल्म विद श्रीधर, द एक्टर्स, बहुत मज़ा आया। आई वुड लव टू डू इट अगेन, बट जब तक सही आइडिया ना मिले देन सीक्वल बनाने के चक्कर में फिल्म नहीं बनानी चाहिए। मैं मानता हूँ इस देश में प्रॉब्ली लगे रहो मुन्ना भाई इज़ द वन सीक्वल दैट वेंट बियॉन्ड द ओरिजिनल। हमें भी ऐसे टारगेट रखनी चाहिए कि एटलीस्ट ऑन पेपर हमें इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार ओरिजिनल अच्छा था, ये और अच्छा है। एंड वो मेरे हिसाब से इतना आसान काम नहीं है। राजू हिरानी इज डन दैट अमेजिंग वर्क, सो till we satisfy ourselves that okay we feel it's better, then it's not worth doing. यहाँ पे हम 2 ड्रामेबाज को देख रहे हैं, 3 एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म में जी। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा इस फिल्म में? They are very important characters, but finally the thrust of the film is in जोड़ी के बेस पे है, but always women add complications between men also, so it's no different. तो इसमें there's Pooja Salvi who I directed many years ago in a commercial, I think 5 साल पहले डायरेक्ट किया था। तो शी हैज़ अ लवली इनोसेंस एंड एक जो एक ऑलमोस्ट एक कॉमिक इनोसेंस है। हम थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं फिल्म में। शी ब्रिंग्स दैट प्रेजेंस एंड उसके एक ऑलमोस्ट एक ऑपोजिट है, एक गेलन के जो कैरेक्टर है, चित्रा है जो आयुष्मान की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर है। तो शी इज़ प्लेइंग समवन हु इज़ फुल ऑफ जार्गन एंड वो हमेशा जो सेल्फ हेल्प बुक्स टाइप पढ़ती रहती है, वो ज्ञान देती रहती है कि इस टाइप का आदमी है, वो है। सो दैट्स ऑल्सो अगेन अ वेरी फन कैरेक्टर। एंड थर्ड इज़ एवलिन हु इज़ पार्ट ऑफ द ड्रामा ग्रुप। शी इज़ वर्किंग विथ कुणाल एंड आयुष्मान बोथ, एंड उनका भी प्रेजेंस बहुत अच्छा है। शी हैज़ lesser dialogues in the film, but she's got a lovely presence। वो जो ये सब ड्रामा के बीच में फंसती रहती है, तो वो अपने आँखों से वो कैसे अपने आप को बचाती रहती है, that's also, so I think this film would not be complete without the 3 of them, and they've all done a very nice job.
एक नौटंकी साला गाना भी है जिसपे अभिषेक ने परफॉर्म किया है. ही इज परफॉर्म्ड इन बोल बच्चन एज वेल. व्हाट इज दिस अमिताभ बच्चन फेमस सॉन्ग्स पे जो अभिषेक कर रहे हैं, because your father and he has a good rapport, that's the reason, or it was a very important crucial thing in your film? For Abhishek? Yeah. For Abhishek, it was actually, it was just the same day we shot the scene. उसी दिन हम वो गाना का एक टुकड़ा कर रहे थे, तो I thought it would be a nice way to start the song with a shot of him. तो it was nothing more than that. And नौटंकी साला, मतलब इस गाना का नाम एक्चुअली है ड्रामेबाज. उसमें सिर्फ एक शब्द है नौटंकी साला at the end of the song. But I think it's just fun to use him. He's a wonderful dancer and singer. तो एक बहाना मिल गया कि एक और गाना साथ में कर लें, even though he's there for a small part. You're saying that he sung a bit? No, he's not sung. He's not sung. The गीत सागर है जिन्होंने वो गाना गाया है, and he's just done one small part at the beginning of the song. But do you think he's your lucky charm? I hope so. You have to ask me after the release. I really hope he's my lucky charm. लकी चम की बात हो रही है, जिस तरह आयुष्मान ने विकी डोरल में गाना गाया था पानीदार रंग, और इसमें भी गाया है, तो आपको लगता है कि ये काम आ जाएगा इस फिल्म में? 100%. कल ही मैं देख रहा था कि साडी गली फर्स्ट वीक में ही नेशनली नंबर 2 पे पहुंच गया. मैंने ऐसे खबर कभी नहीं देखी है कि न्यू एंट्री स्ट्रेट एट नंबर 2 पहुंच जाती है. तो ऑब्वियसली उनको डबल क्रेडिट जाता है. उन्होंने गाया है, उन्होंने कंपोज भी किया है रोचक के साथ. एंड जस्ट फॉर गुड मेजर एक और गाना है जो इस हफ्ते से शुरू होगी, तू ही तू, जो माइकी ने कंपोज किया और आयुष्मान ने गाया है. तो ही संग 2 सॉन्ग्स इन द फिल्म. आई होप डेफिनेटली वो चार्म करता है ऑडियंस पे. आई नो उनके बहुत सारे फीमेल फैंस हैं जो उनको देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं. एंड डेफिनेटली हम उनको कोई मौका नहीं देंगे थिएटर में नहीं आने के लिए. हम चाहेंगे कि वो आए. कम से कम अगर विकी ने एक बार देखी तो 2 बार तो देखनी पड़ेगी 2 गाने के लिए. रोहन, अगर बात करें आपकी फिल्म की, जो एक कॉमेडी जॉनर है, तो आप कितना टफ कंपटीशन मानोगे जब आपकी फिल्म के साथ एक एक्शन फिल्म रिलीज होगी, बिकॉज विपुल शाह's कमांडो इज रिलीजिंग ऑन दैट डे एज वेल. सो कितना कंपटीशन मानोगे आप अपनी फिल्म का एक एक्शन फिल्म के साथ? डू यू थिंक दैट पीपल वांट टू सी बोथ काइंड ऑफ जॉनर्स, और यू नो देयर इज गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन ऑन द बॉक्स ऑफिस? आई थिंक कंपटीशन तो मॉडर्न लाइफ में तो रहता है. एक तरफ there's this other film, एक तरफ IPL भी चल रही है. अगर IPL नहीं चल रही है तो बड़े बड़े हीरो के फिल्म भी निकलते हैं. तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. फाइनली अगर प्रमोशन से क्यूरियोसिटी बढ़ेगा तो होपफुली ऑडियंस विल कम. एंड सेकंड, मार्केटिंग का जो सबसे पुराना और सबसे मॉडर्न तरीका ऑफ मार्केटिंग इज़ वर्ड ऑफ माउथ. अगर आपके दोस्त लोग ये फिल्म को पसंद करते हैं तो शायद इससे बेटर मार्केटिंग नहीं हो सकती है. तो फाइनली कम्स डाउन टू द फिल्म. डेफिनेटली कंपटीशन विल अफेक्ट अस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट अवॉइड इट. ऐसा ज़माना तो है नहीं जहाँ एक फिल्म को 4 हफ्ते मिलेगी उसके बाद दूसरी फिल्म आएगी. तो विल ट्राई आवर बेस्ट टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस. एंड फाइनली कंटेंट पे डिपेंड होता है. पसंद आई लोगों को तो आएंगे. But are you confident that your film is going to do well, because it's Ayushmann Khurrana and Kunal Rai Kapoor, the biggest dramas of Bollywood? I am confident that we have made the film we set out to make. मुझे satisfaction उस बात से होती है. बाकी अगर मुझे इतना आइडिया होता then I would be owning the film industry. अगर मुझे 100% ऐसे कॉन्फिडेंस होता, मैं इतना भी बड़ा नौटंकी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने बोलूँ कि yes I am confident. No, of course we are always nervous, but I think ये प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार रहा है. पूरे टीम के साथ, नॉट जस्ट द एक्टर्स, सारे क्रू के साथ भी. You know, I am finally the face of 100-200 people who work very hard on a film, and they've given it everything. I'm satisfied with what we made. बाकी it comes down to the audience on that Friday, and उनको अच्छा लगे तो I'll be even happier. Thank you. Thank you. Thank you.